پاکستان کسی گروپ کا حصہ نہیں، روس کے ساتھ بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ یوکرین کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر کا ہے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور منی لانڈرنگ بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو۔ 23 سال بعد پاکستانی وزیر اعظم کا روس کا دورہ، صدر پوٹن کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان کل ماسکو پہنچیں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات، افغان صورتحال، اسلام فوبیا اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ماسکو سے پاکستان ٹیلی ویژن کی بھرپور کوریج۔ معاشی اور خطے کی سلامتی کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ لاہور اور تاشقند کے درمیان براہ راست پروازوں کی جلد بحالی کا امکان، پاکستان اور ازبکستان ترجیحی تجارت سمیت تمام معاہدوں کو جلد حتمی شکل دیں۔ خطے کی خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن و سلامتی ناگزیر ہے، وزیر اعظم عمران خان اور ازبک نائب وزیر اعظم کا اتفاق۔ پاکستان پائیدار امن و استحکام کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم، سری لنکا کے ساتھ طویل المیعاد کثیر الجہتی تعلقات چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سری لنکن بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات، دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کے لیے تاریخی پیکج کی منظوری، رجسٹرڈ آئی ٹی کمپنیوں، فری لانسرز، اسٹارٹ اپس کو ٹیکس سے مکمل استثناء، اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت، بینکنگ چینلز کے ذریعے 100% زر مبادلہ کے استعمال کی بھی اجازت۔ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے اسٹیٹ بینک کا ایک اور اہم منصوبہ، مکئی کی فصل کے لیے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ کا آغاز، بینکس کو زرعی شعبے کے لیے 1700 ارب روپے قرض دینے کا ہدف۔ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، تحریک عدم اعتماد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 233 ارب روپے کے مقدمات زیر التوا ہیں، یہ کسی کا ذاتی نہیں، ملک کا پیسہ ہے، وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد اور احتجاج کا شوق پورا کر لیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ 3.5 سال سے یہی واویلا کر رہے ہیں۔ خلفشار کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتے رابطے، بلاول ہاؤس لاہور میں شہباز شریف کی آصف علی زرداری سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ 7ویں مردم شماری کی انتظامات مکمل، 614 سپورٹ سینٹر قائم، شناختی کارڈ کی شرط نہیں، آئندہ انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر۔ پاک سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ، آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل، دہشت گردوں کے ساتھ ان کے سہولت کار بھی اہم نشانہ، کامیابیاں شہداء کی قربانیوں کی بدولت ممکن ہوئی، DGISPR۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے غیر اعلانیہ مارشل نافذ، ہزاروں بے گناہ کشمیری بغیر کسی قانونی کارروائی کے جیلوں میں قید، حریت کانفرنس کا اقوام متحدہ سے ٹیمیں مقبوضہ کشمیر بھجوانے کا مطالبہ۔ مودی کے دیش میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ، بینکوں میں بھی حجاب اور برقع پوش خواتین کا داخلہ بند، ہندوتوا کے مقابلے کے لیے مسلمان، سکھ اور عیسائی متحد، سان فرانسسکو، سیٹل اور نیو یارک سمیت کئی امریکی شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے۔ بھارت میں یورینیم چوری کے متواتر واقعات، دنیا کو جوہری دہشت گردی کا خطرہ لاحق، بھارت میں تابکار مواد کی کڑی نگرانی کا نظام قائم کرے، ماہرین کا بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے مطالبہ۔
روس نے یوکرین کے 2 علاقوں کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ مشرقی یوکرین میں فوجی بھیجنے کا بھی اعلان۔ مغربی ملکوں کا شدید رد عمل۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور۔ صدر جو بائیڈن نے روس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ یوکرین بحران پر کشیدگی کے عالمی معیشت پر بھی اثرات۔ یورپ میں گیس بحران کے خطرات بڑھ گئے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ جاتی سردی لوٹ آئی۔ سلسلہ آئندہ 4 روز جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ اور بلوچستان کی ہونہار بیٹی کے ہنر کا کمال۔ باریک دھاگوں سے کپڑوں پر دلکش ڈیزائن بنا ڈالے۔ رنگوں کے حسین امتزاج سے کپڑے پر زندگی کے رنگ، ثقافت کا بھی بہترین پرچار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سمینہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ پاکستان عالمی سطح پر کسی گروپ کا حصہ نہیں، مسائل کو طاقت کی بجائے مذاکرات سے حل کرنے کے قائل ہیں۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، منی لانڈرنگ اور غریب ملکوں کو معاشی دباؤ سے باہر نکالنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کو قوانین میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ روسی ٹی وی رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان امن کا شراکت دار ہے اور کسی تنازع کا حصہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ روس سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ تجارت اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا خصوصاً ترقی پذیر ملک اب کسی سرد جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ The developing world really wishes that there is not another Cold War. Because, how do we go ahead? Our purpose is not that we become part of any bloc. I'm not a believer in military conflicts. I believe that civilized societies resolve the difference through dialogues. I'm sure people in Ukraine and in Russia, everyone understands that if there's a conflict, there will be consequences. And I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. وزیر اعظم نے کہا کہ آج دنیا کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور منی لانڈرنگ اہم ہیں۔ حکمرانوں کی کرپشن سے ادارے تباہ ہوتے ہیں اور پیسوں کی غیر قانونی منتقلی سے ترقی پذیر ملکوں کو شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ The ruling elites, what they do is, when they, as Prime Minister and me as a Prime Minister, if I want to take money from Pakistan and my ministers, the only way I can do it is by destroying the institutions that will stop me from doing it. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر ہے۔ فاشسٹ نظریے کی حامل مودی حکومت کو مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی پیشکش کی، جس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ Our only issue is Kashmir. Let's sit down on the table and resolve it. Let's have a roadmap. It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate rather than Friends, through... that would be amazing. موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ اور دیگر ماحولیاتی خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس کی آج دنیا معترف ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان کل سے ماسکو کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ 23 برس میں کسی بھی پاکستانی رہنما کا روس کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ رپورٹ کریں گے محمد نوید اظہر۔ روس کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات کا آغاز قیام پاکستان کے اگلے سال ہوا۔ روس نے پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے متعدد مواقع پر بھرپور معاونت کی ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کراچی کا قیام، Mi-17 اور Mi-35 جنگی ہیلی کاپٹرز پاک روس دوستانہ تعلقات کی بہترین مثالیں ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں روسی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ توانائی کے منصوبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ وزیر اعظم کا استقبال کریں گے اور جمعرات کے روز وزیر اعظم صدر ولادیمیر پوتن سے
मुलाकात करेंगे। खिते की सलामती के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दो तरफा मुलाकात में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये दो मुल्क एक नए दौर में शामिल हो जाएंगे और दोस्ती का नया बाब खुलेगा। This visit has been anticipated for a long time, and we are very happy that he has decided to come to Moscow, and I hope this visit will produce very good results. उम्मीद है कि ये तारीख साज दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम तल्लुकात के लिए बहुत कारआमद साबित होगा और इंशाअल्लाह हम पूरे पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क है। इलाकाई सलामती हो या खित्ते में अमनो अमान की सूरत हाल, पाकिस्तान ने हमेशा कायदाना किरदार अदा करते हुए मसाइल के हल पर बात की है। इस्लामोफोबिया पर भी पाकिस्तान और रूस के मौक़िफ़ में यकसानियत है। रूसी सदर की जानिब से इस्लामोफोबिया पर दिए गए बयान को इमरान खान ने न सिर्फ सराहा बल्कि इसको अक़वाम आलम के लिए भी अहम पैगाम करार दिया। मोहम्मद मीर अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सयाहत, कारोबारी रवाबित और अवामी सतह पर राबतों को बढ़ाने के लिए लाहौर और ताशकंद के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली की अहमियत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर सरमायाकारी उमर ज़ाकोफ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, ज़राअत, तवानाई और अवामी सतह पर राबतों के तमाम शोबों में ताल्लुकात उस्तवार करने के अज़्म का इज़हार किया। खत्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ और खत्ते की खुशहाली के लिए अफ़गानिस्तान में अमन व सलामती नागुज़ीर है। अफ़गान अवाम को दरपेश इंसानी और इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने तरजीही तजारती मुआहदे समेत तमाम ज़ेर इल्तवा मुआहदों को हतमी शक्ल देने पर भी जोर दिया। वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 233 अरब रुपए के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। ये किसी का ज़ाती नहीं, मुल्क का पैसा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि ऐसा फोरम होना चाहिए जहां हुकूमत और अदलिया के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुशावरत हो। ये जाहिर है, देखिए ये मुल्क का पैसा है, इसका कोई किसी का इंडिविजुअल का तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और यहाँ पे तकरीबन 233 अरब रुपया है जिसके केसेस थे। उनमें से 13 केसेस चेयरमैन एफबीआर ने पॉइंट आउट किए कि वो ज़्यादा अहमियत के हैं क्योंकि उनमें पैसा ज़्यादा है, और उसके ऊपर जो अल्टरनेटिव सजेशंस क्या हो सकती हैं वो हाई कोर्ट से और रजिस्ट्रार साहब से और सबसे डिस्कस हुई हैं और बहुत ही मैं समझता हूँ कि उम्दा मीटिंग रही है। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये फोरम प्रोवाइड किया है और उसके अंदर बहुत सारी जो है वो गुफ्तगू हुई है और यकीनी तौर के ऊपर जो मैंने एफबीआर यहाँ खड़े हैं ये इस्तेफादा करेंगे इन तजावीज़ से जो आज सामने आए। एक सवाल पर वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है, इंतशार और खलफिशार उनके गले पड़ेगा। इलेक्शन में 1 साल रह गया, इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। तफसील बताएंगे फाहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में भी अपोजिशन को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर सुरखरू होंगे। ये अपोजिशन आज देखें, जो एक दूसरे के गले पड़ती थी वो पाँव पड़ती है, इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। ऐसे वक्त में ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं जब इंतशार और खलफशार, मेरे लफ्ज़ दोबारा सुन लें, इनकी सियासी गलत फहमियों से कोई बड़ा सियासी हादसा हो सकता है और ये इंतशार और खलफशार इनके गले पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि ऐसे नजर आ रहा है कि कराची में कानून की अमलदारी नहीं रही है। बड़ा जुल्म है। अदर मतीन बहुत ज़बरदस्त आदमी था और कराची में मैंने कहा है अगर मुराद शाह साहब कहें तो हम रेंजर्स थानों में भी देने के लिए तैयार हैं। और कराची में कल जो मैंने हालात देखे हैं वो नागुफ्ता बे हैं, क्योंकि मैं मरकज़ का वज़ीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची में कोई कानून नहीं रहा और इसके बुरे नतीजे भी निकल सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और दीगर मामलात को बेहतर समझती है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जानों की कुर्बानी देने वालों को कौम सलाम पेश करती है। फाद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी मनसूबा नहायत अहमियत का हामिल है। माजी में माली बुदनवानी के बायस ताख़ीर का शिकार रहा। गुज़श्ता एतवार में नाक़िस कैमरे और स्कैनर्स मंगवाए गए। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। इस
اسلام آباد سیف سٹی منصوبے میں بھی سابق حکمرانوں کی کرپشن آشکار، تاخیر در تاخیر سے لاگت بڑھتی گئی اور قوم کا پیسہ لٹیروں کی جیبوں میں جاتا رہا۔ حد تو یہ ہے کہ 2009 میں شروع ہونے والا حساس منصوبہ 2 حکومتیں بھی مکمل نہ کر سکیں۔ احتساب کی بات آئی تو ثبوت پھر غائب۔ نیب ابھی تک کرپٹ عناصر کے تعاقب میں ہے۔ 12 برس پہلے بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کی منظوری اس وقت کی حکومت نے دسمبر 2009 میں دی۔ بغیر کسی ٹینڈر کے ٹھیکہ غیر ملکی کمپنیوں کو دیا گیا۔ منصوبے میں مالی بدعنوانی کے باعث اگست 2011 میں عدالت نے $124 ملین کے معاہدے کو ختم قرار دیتے ہوئے نیب کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ پروجیکٹ اوکے بھی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو بہت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو somehow اگنور کر دیا اور پھر وہ چیزیں چینج ہوتی گئیں۔ کہ اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے سیف سٹی کیمراز میں اور اس منصوبے میں خاصی کرپشن کی۔ 3 طرح کے کیمرے منصوبے میں شامل کیے گئے۔ کیمرے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ نرخوں میں خریدے گئے۔ منصوبے کے تحت پورے شہر میں 1840 کیمرے نصب کیے گئے۔ کچھ روز بعد ہی بہت سے کیمرے خراب پائے گئے۔ نون لیگ کی حکومت میں اس پر 15 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو 1900 میں سے صرف 600 کیمرے درست حالت میں تھے۔ اب تو ہم نے انیکٹ کر دیا ہے سیف سٹی کے ساتھ اور ٹریفک پولیس کے ساتھ۔ اس وقت نیب نے پوری اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کرائی تھی کہ اس کے جو اس وقت کے جو رولز تھے اس کو پیپر رولز کو پراپرلی فالو نہیں کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سیف سٹی کی مدد سے 49% کیسز کا سراغ لگایا گیا۔ 1900 کیمراز ہمارے مزید IDWP جو پہلا فورم ہوتا ہے اس سے اپروو ہو گئے۔ ہماری کیپیسٹی ہے اسلام آباد کو دیکھنے کی یا کرائم کو دیکھنے کی، ٹریفک فلو کو دیکھنے کی یا ایشوز کو دیکھنے کی، وہ ہماری جیسے ہم اب 30% ایریا کے ایشوز دیکھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم 60-70% ایریا جو اسلام آباد کا وہ کور ہو جائے گا۔ اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کنٹرول روم میں نہ صرف گاڑیوں کی شناخت کی جاتی ہے بلکہ چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ موجودہ حکومت کی سیکورٹی کے حوالے سے بہترین حکمت عملی اپنائے جانے سے اسلام آباد اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں IT کے شعبے کی ترقی کے لیے تاریخی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ پیکج کے تحت اس شعبے میں 50 نئے کاروباروں کو سالانہ 1 ارب روپے مالیت کی سیڈ فنڈنگ فراہم کرنے کے لیے پاکستان ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ فنڈ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بیورو کے ساتھ رجسٹرڈ IT کمپنیوں اور فری لانسرز کے لیے ٹیکس ہالیڈے اور 100% فوریکس ریٹینشن کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اسلام آباد میں CGA کے سیکٹر کو خصوصی ٹیکنالوجی زونز کے طور پر مختص کیا جائے تاکہ IT فرمز اور فری لانسرز اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی طرف سے پیش کردہ فوائد سے فائدہ اٹھا سکے۔ ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے صنعتی ترقی پر توجہ دی جائے اور اس سلسلے میں جامع پیکج تیار کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات اسلام آباد میں وفاقی وزراء شوکت ترین اور خسرو بختیار سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صنعتی استعداد بڑھانے اور بیمار یونٹس کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں انڈسٹریل بیس بڑھانا حکومت کی ترجیح ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت صنعتی شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ پہلی مرتبہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کے لیے جامع پالیسی دی گئی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صنعتوں میں روایت کے علاوہ نئے شعبوں کی شمولیت یقینی بنائی جا رہی ہے، جس کا مقصد درآمدی متبادل اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو آلودگی سے پاک کرنے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ اسلام آباد میں اسکاؤٹس کے عالمی دن پر موسم بہار کی شجرکاری مہم کی تقریب کا احوال جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔ موسم بہار کی شجرکاری مہم کے تحت ملک بھر میں 9,500 مقامات پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قابل فخر ہے کہ آج ہماری کوششوں کو دنیا سراہ رہی ہے۔ ہماری جو کوششیں ہیں دنیا نے اکنالج کی ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم ہے، اس نے اکنالج کیا، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اکنالج کیا۔ یہ ہمارے وہ پروجیکٹ ہے جو دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان لیڈرز ہیں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے جو جنگ دنیا لڑ رہی ہے۔ ہم اصل میں اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں آج سب نوجوانوں کو کہتا ہوں، سب نے ذمہ داری لینی ہے درخت لگانے کی۔
मुआवन खसूसी मौसमियाती तब्दीली मलक अमीन असलम ने बताया कि मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने के साथ साथ शजरकारी से हजारों अफराद को रोजगार भी मिला है। इस मौके पर पौधा लगाकर वजीर आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत अब तक 1 अरब 4 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं। मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के लिए 54 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स मुहिम में शरीक हैं। मोहम्मद मीर अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उजागर करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इस दरीना तनाज़े को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कश्मीर के बैठी की काविशों को सराहा और कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इस मौके पर शहरियार आफरीदी ने वज़ीर आज़म को कोहाट डिवीज़न में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदार के तौर पर श्रीलंका के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पाकिस्तान श्रीलंका ताल्लुकात का कलीदी जुज़्व और ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम का बायस है। श्रीलंका के बहरिया के कमांडर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात और तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इआदा किया। श्रीलंकन नेवी के कमांडर ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर मबनी ताल्लुकात पर जोर दिया और बैनुल अक़वामी और इलाकाई फोरम्स पर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका के बहरिया के कमांडर ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। सदर ममलकत ने कहा कि भारत एक मुतशद्दद पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से इलाकाई अमन को ख़राब करने पर तुला हुआ है और बालादस्ती के अज़ाइम की वजह से जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क को फ़ाल नहीं होने दे रहा। उन्होंने बताया कि भारत में अक़लियतों पर जुल्म व सितम एक संगीन तशवीश का बायस है और बदकिस्मती से भारतीय हुकूमत उसे नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सयाहत, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मिलकर पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए पुरज़्म है। रावलपिंडी में श्रीलंकन बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल निशांता ओलोगेंटन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ तवीलुल मयाद कसीरुल जहती ताल्लुकात का ख़्वाहां है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पेशावराना उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। श्रीलंकन बहरिया के कमांडर अफवाज पाकिस्तान के आला पेशावराना मयार को सराहते हुए उन्होंने कहा कि दो तरफा दिफा, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। और नाज़रीन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म उमर ज़ाकोफ ने मुलाकात की, जिसमें पेशावराना बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने अस्करी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दामात करने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। जनरल नदीम रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ मौजूदा फ़ौजी सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाहां है। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की। और अभी आपको आगाह करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से। मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके में कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर करने के लिए मुतलकुल अनान आमरीत और गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि कानून की हुक्मरानी को मस्ख करते हुए भारतीय हुकूमत ने हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के जेलों में कैद कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो इंसानी हुकूक की मौजूदा अब तक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपनी टीमें मकबूजा कश्मीर भेजें। नई दिल्ली की एक अदालत ने मुमताज़ कश्मीरी इंसानी हुकूक के अलंबरदार खुर्रम परवेज़ को एक झूठे मुकदमे में 25 फरवरी तक भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA की तहवील में दे दिया है। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 627 बच्चे लापता हैं, जिनमें 277 बच्चियां शामिल हैं। सिर्फ 2020 में मकबूजा इलाके में 167 बच्चियों समेत 230 बच्चे लापता हुए। इंसानी हुकूक के अलंबरदारों ने कहा है कि भारतीय फौजी, पुलिस एहलकार और खुफिया एजेंसियां कश्मीरी बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस
मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के माहिरीन ने कौम परस्त हिंदू ग्रुपों की तरफ से तहकीकाती सहाफ़ी और ख़वातीन के हुकूक़ की मुहाफ़िज़ राना अयूब के ख़िलाफ़ ऑनलाइन नफ़रत के इजहार, धमकियों और फ़िरका वाराना हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उनके खिलाफ अदालती हरासानी का सिलसिला फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा है कि राना अयूब को मुसलसल हिंदू इंतहा पसंद ग्रुपों की तरफ से ऑनलाइन हमलों और कत्ल और रेप की धमकियों का सामना है। और अभी कुछ बात करते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से। 5 साल पहले जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। आए मिलकर अपने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत बनाए। 5 सालों में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के तस्वीर में अमन के रंग भर दिए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के कामयाब 5 सालों की दास्तान राना शहजादुस सलाम की ज़बानी। बाईस फरवरी 2017 पाक फौज ने मुल्क भर में एक नए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से शुरू करने का ऐलान किया। ऑपरेशन शुरू करने का मकसद बचे खुचे दहशत गर्दों का बिला इम्तियाज खात्मा, छुपे दहशत गर्दों को तलाश करना ताकि अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों के फवायद को पुख्ता किया जाए और सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। हम हर दहशत गर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने अवामी हिमायत से दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। दहशत गर्दों का बयानिया खत्म करने के लिए 1800 से ज़ायद जय्यद उलमा कराम ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक नया बयानिया दिया जिसमें दहशत गर्दी की हर तरह की किस्म को दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ करार दिया गया। दहशत गर्दों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पाक अफगान सरहद पर 95% और पाक ईरान सरहद पर 78% बाड़ लगाई गई। इसके अलावा मौसर निगरानी यकीनी बनाने के लिए दोनों सरहदों पर 679 कले, चेक पोस्टें और बॉर्डर टर्मिनल्स की तामीर हो चुकी है। दहशतगर्द तंजीमों का मुकम्मल कला कमा हो चुका है। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। टोटल 717 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए गए जिनमें से 344 दहशत गर्दों को मौत की सजा दी जा चुकी है। काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए मुतासरा इलाके क्लियर किए गए जिससे मुल्क भर में दहशत गर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई। साबका कबायली इलाकों में रियासत की रीट बहाल हुई। कबायली इजला में दहशत गर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए खसूसी ऑपरेशंस किए गए जिसके तहत 60,000 से ज़ायद बारूदी सुरंगों को नकारा बनाया गया। ऑपरेशन दुआ तुई, शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर ऑपरेशन के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर मुकम्मल रियासती रीट बहाल हुई। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों से आर्जी तौर पर नकल मकानी करने वाले शहरियों की अपने घरों में बाइज्जत और बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई गई। इन इलाकों को तरक्की देने के लिए समाजी और इक्तिसादी मेगा मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए गए। 2017 से लेकर अब तक कानून नाफज करने वाले इदारों की कैपेसिटी इनहांसमेंट के तहत FC के 67 नए विंग्स कायम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में 40,000 से ज़ायद पुलिस के जवानों और 22,000 के करीब लेवीज और खासादार अहलकारों की जामे तरबियत की। CPAC और दीगर तरक्याती मंसूबों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को बेनकाब किया गया। अमन व अमान की सूरत में बेहतरी से शहर कायद जराइम की आलमी दर्जा बंदी में 6 से 124 दर्जे पर आ गया। छठी मर्दमशुमारी का अमल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी फ्राहम की गई। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद हुई। सेहत को फरोग, ग्वादर, शुमाली इलाका जात और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। पाकिस्तान में बुद्ध मत, हिंदू, सिख मज़हब के पैरोकारों की जौक दर जौक आमद हुई। So guys, we have just arrived in Pakistan. Pakistan is safe and free of terrorists. Nothing is impossible in Pakistan. ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजा खेज होने की बात की जाए तो आज का पाकिस्तान देख लें, जवाब खुद मिल जाएगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के इस अज़्म समीम को ज़ाहिर करते हैं कि मादरे वतन में दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और हमदर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। राना शहजादुस सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का अहम हदफ दहशत गर्दों के साथ उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाना है। तफसील बता रही हैं कंजा नकवी।
ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल होने पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में शहीदों और कौम के अजीम जज्बे को सलाम पेश किया है। उन्होंने कहा कि रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शहीदों की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। DGISPR ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद 2 दिहाइयों की जंग, दहशतगर्दों का खात्मा करना और पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी रहा। नतीजे में मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर पुरअमन हुआ। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशतगर्दों ने कबायली अजलाह में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद मुल्क के तूल अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। ये ऑपरेशन टेररिस्ट और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर जिंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। ऐसे में ऐसे एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए रद्दुल फसाद ऑपरेशन एक 2 pronged स्ट्रेटजी के तहत इसका आगाज किया गया, जिसमें एक prong काउंटर टेररिज्म डोमेन को देखता था और दूसरा काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। एज फार एज काउंटर टेररिज्म prong इज कंसर्न, उसके चंद बुनियादी कार्डिनल्स में एक तो बेस लाइन ये थी कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। इसके साथ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वेस्टर्न जोन का मुकम्मल इस्तेहकाम और मुल्क भर में दहशतगर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा, ये चंद इम्पोर्टेंट कार्डिनल्स थे जो काउंटर टेररिज्म prong था। पाकिस्तान की सरहदों को मुकम्मल महफूज करना, कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा से इल्हाक, पुलिस और जिले इंतजामिया को इख्तियारात की मुंतकिली रद्दुल फसाद के समरात हैं। रद्दुल फसाद के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, मुल्क में खेल के मैदान आबाद हुए और सयाहती सरगर्मियों का भी आगाज हुआ। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल के एक कारकुन के कत्ल के बाद जिला शिवमोगा के मुख्तलिफ इलाकों में फसादात फूट पड़े हैं, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मुसलमानों की बस्तियां हिंदू इंतहा पसंद नौजवानों के निशाने पर हैं। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को इस कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और उनकी गाड़ियों को आग लगा दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये कत्ल बाहमी रंजिश का नतीजा है। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बजरंग दल के कारकुनों को मुसलमानों के घरों पर पत्थर बरसाते हुए देखा जा सकता है। भारत के अक़लियत मुखालिफ इक़दामात के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगीं। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अमेरिका की रियासतों में एहतजाज किया गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। भारत में मुसलमान खवातीन पर तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सभी सरापा एहतजाज हैं। भारतीय इक़दामात के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों सान फ्रांसिस्को, सिएटल समेत न्यूयॉर्क में भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाज का एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं अली मिर्जा, मौलाना सखावत हुसैन, आगा शौकत जाफरी और गिलगित बल्तिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के खालिद बल्तिस्तानी ने किया। दुनिया वालों को, हम यूनाइटेड नेशन को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये बात कहना चाहते हैं कि आज जो यहाँ इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर जुल्म और सितम कर रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। ये हमारा राइट है कि हम हिजाब यूज करें, तो इसलिए हम लोग इसकी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरी जानिब भारत की रियासत बिहार में एक बुर्का पोश खातून को सरकारी बैंक में लेन देन करने से रोक दिया गया। मुतासरा खातून ने वाकया रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। भारत में यूरेनियम की चोरी के मुतवातर वाक़यात से दुनिया को जोहरी दहशतगर्दी का खतरा लाहिक है। 2 दहाइयों के दौरान 200 किलोग्राम से ज़ायद जोहरी मवाद चोरी हो चुका है। माहिरीन ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी पर जोर दिया है कि भारत में ताबकार मवाद की कड़ी निगरानी का निज़ाम कायम करे। गुज़िश्ता दिनों नेपाल से यूरेनियम के साथ गिरफ्तार होने वाले अफराद में से एक ने दावा किया कि उसका ससुर ये मवाद भारत से लाया था, जहाँ वो यूरेनियम की कान में काम करता था। 1994 से 2021 तक जोहरी मवाद की चोरी और गुम होने के कम से कम 20 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इससे ये जाहिर होता है कि भारत जोहरी टेक्नोलॉजी और मवाद की गैर कानूनी तिजारत का गढ़ बनता जा रहा है।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز گرد آلود ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر گیالہ باری بھی متوقع ہے، تاہم شمال مشرق پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اور اب آخر میں ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ اسلام آباد 8، لاہور 11، کراچی 21، پشاور 9، کوئٹہ 5، گلگت 4، مظفر آباد 6، مری 3، دیر -2، مالم جبہ -2، چترال 7، راولاکوٹ 1، فیصل آباد 9، ملتان 12، سرگودا 9، سری نگر 4، جموں 13، لے -9، پلوامہ 4، اننت ناگ 7، شوپیاں 4 اور بارہمولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ نے جانا، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں کچھ مزید قومی خبروں کے جانب۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتے رابطے۔ بلاول ہاؤس لاہور میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے رہنما اس موقع پر موجود تھے۔ ماضی میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے اور علی بابا 40 چور کہنے والے آج پھر ذاتی مفادات کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سندھ کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے، گو نواز گو کا۔ ماضی کے سخت ترین سیاسی حریف اور مخالف ایک بار پھر اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کا ماضی ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات اور نامناسب الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت ملک کی کمزور معیشت، کرپشن اور انتظامی خرابیوں کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتی رہی ہے۔ ایک موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بنیادی ڈھانچے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مسٹر آصف زرداری، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو، میں ایک بار نہیں، میں 100 بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا، تمہارا استقبال کبھی نہیں کروں گا میں۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی تو نون لیگ کو ملک کے لیے خطرہ بھی قرار دیتی رہی ہے، جبکہ آصف زرداری شہباز شریف کو شوباز قرار دیتے رہے۔ اگر یہ نہیں گئے تو آپ دیکھیے گا ان کے جتنے شوباز کے نعرے ہیں، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ بے ایمان ہے۔ اس دفعہ ہم نے شریفوں کو مٹانا ہے، اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، اور مجھے پتا ہے کہ اس گھر میں آپ کتنے بہادر ہیں۔ یوں اس وقتی اتحاد کے پیچھے ملک و قوم کا کوئی مفاد نہیں، بلکہ یہ سارا کھیل مفادات کا ہے۔ میثاق جمہوریت کے نام پر بھی ان دونوں جماعتوں نے باریاں لگائیں اور عوام کو بے وقوف بنایا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہی کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفاقی وزیر سیفران صاحبزادہ محبوب سلطان اور رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ امیر سلطان نے ملاقات کی، جس میں موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عوامی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ سیاسی عمل کی وجہ سے رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، تاہم فیصلے مشاورت اور سوچ سمجھ کر ملکی مفاد میں کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خورشید شاہ کیس کے شریک ملزموں کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی اپیلیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزیر سندھ اویس قادر شاہ کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب اپیل بھی خارج کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ مرکزی ملزم کے ضمانت پر ہوتے ہوئے ساتھیوں کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ ٹھوس شواہد کے بغیر کسی پر مقدمہ بنانا درست نہیں۔ نیب تحقیقات کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ میں الزامات ثابت کرے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا ربانی 24 فروری کو فیصلہ سنائیں گے۔ عمران منصب کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
20 जुलाई की शाम इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में बेदर्दी से कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। 25 जुलाई को शवाहिद छुपाने और एआनती जुर्म के इल्जाम में पुलिस ने दीगर मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया। 14 अक्टूबर 2021 को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई तो मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। 20 अक्टूबर से ट्रायल का बाकायदा आगाज हुआ। ट्रायल के दौरान जाहिर जाफर की सेहत पर भी सवाल उठाए गए। कभी स्ट्रेचर और कभी व्हील चेयर पर लाया गया। कैमरा अदालत में अजीब हरकतें भी की, कभी पुलिस वालों को धक्के दिए, कभी चलने से इनकार किया, लेकिन ट्रायल चलता रहा। शहादत ने कलम बंद और जिरा मुकम्मल होने के बाद मुलजमान को ज़ाब्ता फौजदारी दफा 342 के तहत सवालनामा दिया गया। 342 के बयान में जाहिर जाफर अपने पिछले बयानात से मुनहरिफ हो गया। हतमी दलाइल में मुलजमान के वकला ने कत्ल को गैरत के नाम पर कत्ल का रुख देने की भी कोशिश की। मुद्दई के वकील शाह खावर ने हतमी दलाइल में अदालत को बताया कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में DVR, CDR, फोरेंसिक और DNA पर मबनी ठोस शवाहिद साइंसी बुनियादों पर शामिल किए गए हैं। जज साहब पे पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह जो है उन्होंने डिफेंस को पूरा मौका दिया और बहुत फेयर ट्रायल की है। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने कहा कि मुलजिम जाए वकूआ से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ, उसकी शर्ट खून आलूद थी। अदालत इस केस को मिसाली बनाए। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नई मरदमशुमारी के लिए इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर में 614 सपोर्ट सेंटर्स बना दिए गए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि मरदमशुमारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त नहीं, आइंदा इंतखाबात नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में कौमी शुमारी राब्ता सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी और फैसला साजी के लिए मुअस्सर और काबिल इत्माद अदाद-ओ-शुमार का होना जरूरी है। मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट और उसके बाद जो मेन है वो अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा और उसके बाद नवंबर के महीने में आपका पोस्ट जो सेंसस इनोमिनेशन जो है ना ऑडिट किया जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे। दिसंबर के अंदर हतमी नताइज का ऐलान हम कर देंगे और आइन आपका ये कहता है कि जो लेटेस्ट मरदमशुमारी हुई हुई है उसी की बुनियाद के ऊपर आपने हल्काबंदी करनी है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए सूबों की मुशावरत से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये वफाक के लोग नहीं बैठे हुए, ये कनेक्टेड होगा तमाम सूबों के साथ, उनके पास ये डेटा अवेलेबल होगा। जब तमाम इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में सबको मुहैया कर दी जाए और तमाम फैसले तमाम वफाकी इकाइयों को के सामने मिलकर मुशावरत से हो रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर जो एतमाद है वो भी बढ़ता है। चीफ शुमारिया डॉक्टर नईम जफर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए होने वाली पहली मरदमशुमारी के लिए पूरे मुल्क में 614 मरदमशुमारी सपोर्ट सेंटर बनाए गए हैं, जबकि एक ब्लॉक 250 घरानों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात में कायम मरकजी डिजिटल लैब का भी दौरा किया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से गवर्नेंस में बेहतरी के साथ मुतवस्सत क़यादत भी सामने आएगी। इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ में मकामी हुकूमतों का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के बाद कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने मकई की फसल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट फाइनेंसिंग का आगाज़ कर दिया है। काश्तकारों के लिए कर्जे के हुसूल के इस जदीद तरीके का आगाज़ कसूर की तहसील चूनिया में एक तकरीब में किया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि हमारे मुल्क में 90% छोटे काश्तकार हैं। हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कोशां है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग से काश्तकारों को सरमाए की दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। पिछले जो माली साल था उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को 1500 अरब का टारगेट दिया था कि ये ज़राअत के शोबे में और किसानों को इतनी फाइनेंसिंग डिस्पर्स करें। तो इसके मुकाबले में 30 जून 2021 में 1365 अरब के कर्जे बैंकों ने ज़राअत के शोबे को दिए। ये टारगेट से थोड़ा सा कम है लेकिन उससे पिछले साल की मुनासिबत से कहीं ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग से काश्तकारों को अपनी पैदावार महफूज करने की मुनासिब सहूलत मिलेगी। ये रसीदें बैंकों से कर्जा लेने के लिए जमानत के तौर पर इस्तेमाल भी की जा सकेंगी। सिंध में लूट मार और तशद्दुद की वारदातों में इजाफे से अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं।
कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ गई हैं। लुटेरे पुलिस के काबू से बाहर दिखाई देते हैं। सिंध हुकूमत ठोस इकदामात की बजाय रिवायती बयानबाजी से काम ले रही है। कराची में जराइम पेशा अनासर का निशाना बनने वाले शहरी सरापा एहतजाज हैं, मगर सूबाई हुक्मरानों ने आंखें बंद कर रखी हैं। अमली तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शहरियों को जराइम पेशा अनासर के रहमो करम पर छोड़ दिया है। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक 2599 शहरियों से मोबाइल फोन्स छीन लिए गए, 3908 मोटरसाइकिलें और 184 गाड़ियां चुरा ली गईं। रहजनी की वारदातों में 16 गाड़ियां और 419 मोटरसाइकिल छीने गए। रवां साल की बात करें तो कराची में अब तक डकैती में मज़ाहमत पर 15 अफराद कत्ल और 20 जख्मी कर दिए गए, जबकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 6000 से बढ़ चुकी हैं। सिंध हुकूमत माशी हब कराची को पुरअमन और जराइम से पाक शहर बनाने में बुरी तरह से नाकाम है। अंदरून सिंध आए रोज संगीन नोयत के वाकयात एक तसलसल से जारी हैं और बेबस लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि सहाफ़ी अतर मतीन के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ियों, समाजी और सियासी तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में सदर थाने के सामने धरना दिया। शुरका ने कहा कि अतर मतीन समेत 256 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, मगर सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कल सिंध असम्बली तक एहतजाजी मार्च करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में सहाफ़ी अतर मतीन के लवाहिकीन से तासियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जमानत को मुश्किल करने के लिए कानून साज़ी कर रहे हैं। आती स्ट्रीट क्रिमिनल्स की टैगिंग की जा रही है। सहाफ़ी अतर मतीन के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वबा में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 961 नए केसेस रिपोर्ट हुए, मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.51% पर आ गई है। राना शहजादुस्सलाम की रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की टीम ने ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद के हमरा फैजाबाद बस अड्डे पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। टीम ने बस अड्डे पर ड्राइवरों, मुसाफरों और वहां पर मौजूद दुकानदारों के कोरोना सर्टिफिकेट्स चेक किए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर ही भारी जुर्माने आयद किए गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 961 नए केस रिपोर्ट हुए। मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क में कुल अमवात की तादाद 30,053 हो गई है। 38,139 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रही। मुल्क में मजमूई तौर पर 20,94,38,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वबा फैलने की शरह गुज़श्ता 24 घंटे में 3.09% रही। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक कोरोना वायरस से सूबे में जांबाक अफराद की तादाद 374 हो गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने मुल्क में कोरोना पाबंदियां जल्द खत्म करने का इंदिया दिया है। लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पाबंदियां पहले ही खत्म की जा चुकी हैं, ताहम कानून के मुताबिक बाकी भी जल्द खत्म कर दी जाएंगी। फैसले के बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में मरीज के लिए लाजमी आइसोलेशन भी खत्म हो जाएगी। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस से दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। बड़ा क्लोज स्ट्रेटेजिक अलायंस है रशिया का चाइना के साथ, और पाकिस्तान का क्लोज स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ। और उसी अगर आप सिमत में देखें तो आने वाले जमाने में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशनशिप होंगे उनमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। दोनों लीडरशिप के दरमियान में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप और बहुत ही वार्मथ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान और रशिया स्ट्रेटेजिक डिसीजन करेंगे।